syntax of for next loop. What is the syntax of for next loop? For counter equal to initial value to final value, then list of statements that you want to execute, and after that next. And the syntax of do while condition, set of statements, and then loop. So in the do while loop, the keywords are do, while and loop. For next में कौन से आपके keywords हैं? For, next, to. Clear? The syntax are clear. दोनों questions की syntax clear हैं सबको? Okay, so yesterday we did using a for next loop. We have printed the numbers. किसको नहीं clear हुआ वो concept? How to print the numbers? Yesterday so many students are doing wrong. बहुत सारों का output भी नहीं आ रहा था. मुझे बताओ कहाँ पे आपको problem आ रही है? क्या चीज समझ नहीं आई है? So that we can discuss that again. हाँ जी बताओ. Implement आपसे नहीं हुआ. You people know that and I don't want to name yours. आपको पता है किस किस का नहीं हुआ, किस किस की क्या प्रॉब्लम आ रही है. You people know that. So tell me where is the problem. क्या चीज आपको नहीं क्लियर हुआ है for next में? बताओ. क्लियर है? आप आगे कोडिंग करेंगे यहाँ पे? Will you? हो जाएगी आपसे? बताओ. हो जाएगी? आप आओगे? कोडिंग भी नहीं आपसे होगी, कोई डाउट भी नहीं आपको, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? बिकॉज यू पीपल डोंट वांट टू आंसर. If I want to print first 10 natural numbers, so what code I will write here? Tell me. सबसे पहले मुझे क्या लेना है फॉर्म के ऊपर? बताओ सबसे पहले क्या लें टूल बॉक्स से? लेबल. अगर हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, व्हाई आई नीड अ लेबल फॉर दैट? मैंने लेबल में क्या एंटर करवाना है? व्हाट आई हैव टू एंटर? चलो लेबल लेके ऊपर हेडिंग दे देते हैं. दैट कैन बी डन. ओके, व्हाट एल्स? So in the label, I'm going to write here, I'm going to display first 10 natural numbers. Clear? You can set the font, you can give back color, you can give font color. ये चीजें आपको पता है कैसे करनी है? How to do that? From the properties window. And then what we need a list box. So list box is here. List box will display output, that is a list item. It is going to display a list item. And where I am going to click? On a button. So we need a button for that. And here you can give the text print. Now where to do a coding? On a button. So we will double click on this. After double clicking, the code window will open. Now the function name is private sub button 1 underscore click. Here you have to write a code. So when we have to display the first 10 natural numbers according to the for loop, what coding is to be done? For, then we have to take counter variable. You can take any counter variable. For example, मैंने a ले लिया, equal to starting value to final value. Counter equal to starting value to final value. So हमारी starting value कितनी है? 1. कहाँ तक हमने प्रिंट करना है? Till 2. 2 से 1 से 10. Then list of statements to be executed. What code we will write here? List box 1 dot items dot add. Then what argument is to be passed here? A में आपकी values आ रही हैं, so A. Any doubt? List box 1 dot items dot add, and the value of A will be incremented
Firstly, it will be 1. The condition will be 1 less than or equal to 10. Condition is true. It will going to print the next statement. Then it will come on the next. Next का मतलब it will going to increment the value of a by कितने से increase होगी? By 1. So that means a equal to 1 plus 1. That is equivalent to 2. रघुवीर क्या प्रॉब्लम है? आप उधर चले जाओ क्लास। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? The new value of a is now 2. So 2 is less than equal to 10. That is again true. Condition क्या बन गई आपकी? True हो गई. Condition is true. So that means it is satisfied. जब condition true हो गई, then it will going to print. Statement नहीं आ रही 4 के बाद. तो statement में अगर आपके पास a की वैल्यू 2 है तो what it will print now? 2. पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट पे जाके क्या हुआ? 3. नाउ 3 इज लेस देन 10. कंडीशन फिर से ट्रू है. अगेन इट इज गोइंग टू प्रिंट. प्रिंट में क्या डाला? a की वैल्यू कितनी है? 3. तो 3 प्रिंट हो गया. ऐसे ही सर्कल चलते जाएगा. कब तक चलेगा? जब तक a की वैल्यू 10 नहीं आ जाती है. As soon as the value of a will get 11, the condition will become false. और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, it will come out of a loop. Clear? So write the coding in your notebook. So let's start. Okay, what are the 3 methods for starting or for running the VB program? What are the 3 methods? F5 key, start debugging button on the standard toolbar, debug menu, start debugging option. So you can use any method. And then it is going to give a result in the list box control as soon as we will click on a print button. So see 1 से 10. Clear है? Any doubt? Any doubt to anyone? Yes, online students. Any doubt, बच्चे? Jayan, the program is clear? Yes, Jayan. बच्चे, the voice is audible. Online student. Okay. चलो, you have noted this coding. सबने नोट कर लिया. This is program to print first 10 natural numbers. Program to print first 10 natural numbers. Now what if I want to print first 10 even numbers? अब मुझे natural numbers नहीं print करने हैं, even number print करने हैं. तो what will be the logic for the same? क्या logic लगाओगे आप? Even अभी इसमें क्या हो रहा है? सीधे सीधे नंबर आ रहे हैं इंक्रीमेंट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स. अगर अब आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं तो इवन नंबर्स कौन से होंगे? 2 4 6 8 10. तो ये कितने नंबर हुए? नंबर कितने हुए? अगर मैंने 2 से लेके 10 तक बोले 5, मुझे कितने चाहिए? 10. तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से बने? So till 20 we will be getting first 10 even numbers. Even number start कहाँ से हो रहे हैं? 2 से. Even numbers are starting from 2 and it will go up to 20. So we will write a equal to 2 to 20. Now even number का concept क्या होता है? By how much number we have to add? 2. So we will write here a equal to a plus 2. And instead of this statement, you can also write a plus equal to 2. That means a plus equal to 2 का मतलब होता है a equal to a plus 2. Write down in your notebook. एक नोट बनाओ कॉपी पे. चाहे स्टेटमेंट हो a equal to a plus 2, a equal to a plus 2 और a plus equal to 2. Both the statements are same. दोनों का मतलब सेम है. दोनों में इंक्रीमेंट 2 से ही होगा. नेचुरल नंबर में क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट कितने से हो रहा था?
1 से. We are incrementing the value of a by 1. Now in case of even numbers, we have to increment by 2. तभी आएगा ना 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. ऐसे ही चलते जाएगा. जब 18 + 2 20 हुआ तो वहां पे आके क्या आया? 20 is less than or equal to 20. कंडीशन ट्रू, तो 20 प्रिंट हुआ. उसके बाद 20 + 2 22. Now 20 is less than or equal to 22. Condition will become false. So we will come out from a loop. Clear है? आपने दोनों स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है. ओके, so we are starting from A2 to 20. So see, it is incrementing. Now if I want to print odd numbers, then 1 to 20 भी ले सकते हैं. जब वहां पे 19 होगा तो 19 + 2 क्या हुआ? 21. तो ऑटोमेटिकली वहां पे जाके इट विल बिकम फॉल्स. राइट? So any doubt? Clear है सबको? Okay, now the same program using the do while loop. So the syntax of do while. अच्छा पहले मेरे को बताओ for के साथ that program particularly name वाला हमने कल किया था, वो क्लियर है सबको? आई गेस उसमें n% में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि स्पेसिस कैसे आनी है. शुड आई डू दैट प्रोग्राम और इट्स क्लियर? तो उसमें क्या था? इन दैट प्रोग्राम फर्स्टली वी हैव टू टेक the name of a particular user. That means we are asking the user to enter a name. ठीक है, तो यही वाला लेबल मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे. एंड द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट इसका चेंज कर दो, दैट इज एंटर नेम. क्लियर? सो वेयर वी आर गोइंग टू एंटर? इन अ टेक्स्ट बॉक्स. we need a text box for that. So this is a text box 1 by default. And on the print I want to display the name. तो सबसे पहले हमें नेम लेना है. नेम हमारा कहाँ पे पड़ा है? टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा है. So what I will write here? text box 1 dot text. इसकी वैल्यू हम किस में लेंगे? In some variable. So for taking a variable, firstly we have to declare a variable also. The syntax for declaring a variable is dim variable name as data type. Now name is a string or numeric? The value is string. So what I will write? dim कोई भी एक वेरिएबल ले लो as string. तो आपने एक वेरिएबल बना लिया n as string. और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू किस में डाल रहे हैं? वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल n. क्लियर? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. So dim n as integer, n equal to text box 1 dot text. उसकी वैल्यू n के अंदर आ गई. Now we have to display the value. How many times I want to print? So for we will be using for loop for that. Take the counter variable, start from whatever the position that you want to give. For example 1 to 5, मुझे 5 times print करना है. And in this list box 1 dot items dot add. And here अगर हम directly n डालते हैं तो उससे क्या होगा? 5 times वो नेम प्रिंट हो जाएगा. ओके, एक तो ये थी वेरिएशन प्रोग्राम की कि हमने सिंपली इतना डाला और n में हमारे पास वैल्यू आ रही है. So let's see. So here we are going to enter the name, right? Print button 5 times हमने बोला 1 to 5, तो 5 times it is printed. 5 times name print हो गया. But I want instead of printing the name only, it should also appear कि वो कितने नंबर पे है. 1 2 3 4 5. The sequence number should also be there. ठीक है, तो नंबर्स आपके किस में पड़े होते हैं? काउंटर वेरिएबल में. अभी हमने 1 to 10 वाला किया था, तो नंबर किस में पड़े थे? इन अ काउंटर वेरिएबल. सो काउंटर वेरिएबल है हमारा ए को आप किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? n के साथ. ज्वाइनिंग बाय सिंबल %. तो हमने ये ज्वाइन कर दिया स्मॉल a and then %, and then
n. So we are joining this. अब इससे क्या होगा, a m% n से क्या होगा, so once again enter the name here. So see, no space is there. a की वैल्यू प्रिंट हुई, a में 1 था, n में नेम था, 1 sawmill, इंक्रीज हुआ 2 sawmill, इंक्रीज हुआ 3 sawmill, means no space is there. So how to give a space here? In a double quotes, because space is also a string, and whatever the string you are going to write, string is to be written inside a double quotes. Okay, so a की वैल्यू m%, हम इसको किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं एक सिंगल स्पेस के साथ, उसके बाद स्पेस को फिर से n के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अगेन वी हैव टू राइट m%. क्लियर? पहले क्या था, सिर्फ नंबर और नेम को ज्वाइन कर रहे थे, अब नंबर और नेम के बीच में एक स्पेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, so that's why 2 m% symbols will be there. Any doubt? So note down the code side by side. So when I will print this, so now it is showing me a space also. Okay, clear? Note down. Note down the code, be quick. Now in your book, one program is given that is to print a table of a number. किसी भी नंबर का एक टेबल प्रिंट करना है, तो आपको पता ही है कि टेबल कैसे होते हैं, 2 1 2, मतलब 2 × 1 = 2, ऐसे ही होता है. तो लेट्स फॉर्म दैट प्रोग्राम. कर दो इसको इरेज में. Written. Okay, so firstly I'm coming on to the design window again. So instead of enter name here, I'm going to enter number. कौन सा नंबर, जिसका भी टेबल मैंने प्रिंट करना है. Enter the number whose table we want to print. जिसका भी टेबल हमें प्रिंट करना है, so that number we are going to enter here. Okay, अब हमें नंबर एंटर करना है, तो नंबर इज अ स्ट्रिंग. नंबर तो इंटीजर होता है, नेम स्ट्रिंग था, राइट. तो यहाँ पे हम डेटा टाइप क्या चेंज कर देंगे, एज इंटीजर. क्लियर? सो डिम एन एज इंटीजर. काउंटर वेरिएबल आपका चला. हमें पता है जब टेबल हम प्रिंट करते हैं तो अप टू 10 वी यूज टू गो. आपकी मर्जी, आप 15 तक कर लो, चाहे 20 तक कर लो लिटरली, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 × 20 पे हम जाके स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, तो हम वही स्टैंडर्ड मेथड ले रहे हैं. तो वी विल बी इंक्रीजिंग इट टिल 1 to 10. अब जब हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू पिक करनी होती है, तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स 1 से पिक कर लेते हैं, राइट. बट इन केस ऑफ इंटीजर वैल्यू, द टेक्स्ट बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग वैल्यू. We will use one function here that will convert that value. कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, that is a val function. So val of text box 1 dot text. ये चीज क्लियर हो गई सबको. पहले स्ट्रिंग था तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, but now we have to convert into a numeric value because we are dealing with the numbers now. So we will be converting it using a val function. Okay, so we have converted a value, and after converting we are assigning a value to a variable n. फिर उसके बाद 10 तक प्रिंट करना है, तो हमने बोला 1 से लेके 10 तक फॉर लूप हमारा चलेगा. Now coming on to this part, अब हमें क्या प्रिंट करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो 5 × 1. तो 5 किस में पड़ा है, 5 किस में आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में. टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस वेरिएबल में जा रही है, n में. n में जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, n. फिर हम उसको किसके साथ करेंगे, क्या चीज आनी चाहिए, दैट इज मल्टीप्लाई. हम किसके साथ उसको प्रिंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई का साइन डाला, x लिखते हैं ना हम, टेबल लिखते हैं जब. ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, a, क्योंकि a में क्या पड़ा है, 1 2 3.
तो बन गया 5 मल्टीप्लाई 1, ए की वैल्यू 1 है, फिर ए की वैल्यू 2 हुई, फिर ए की वैल्यू 3 हुई, ऐसे सो ऑन 10 तक चलते जाएगा। उसके बाद आपको क्या ज्वाइन करना है, इक्वल टू, तो इक्वल टू से पहले एम्परसेंड लगाया, इक्वल टू साइन को डबल कोट्स में डाला, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मतलब आउटपुट। तो वो कैसे आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, वी विल अगेन ज्वाइन इट एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई n into a. Clear? Look at the statement once again carefully. What we are doing, n जिसका भी टेबल हमें प्रिंट करना है, फिर हमें बाद में मल्टीप्लाई का साइन डालना है, फिर उसके बाद हमें 1 2 3 4 चाहिए, और 1 2 3 4 किस में आ रहा है, काउंटर वेरिएबल में आ रहा है। Then we need a equivalent sign, so we have put that equal sign in a double quotes. After that, what we need, it should get multiply and display the आउटपुट। तो n मल्टीप्लाई a को हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने x नहीं डाला, यहाँ पे मैंने एक्सट्रिक साइन डाला, क्योंकि x क्या है, वो तो सिंपल एक सिंबल है जिसको मैंने डिस्प्ले करना है एज इट इज, राइट। मल्टीप्लाई मतलब वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होके आएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ विच ऑपरेटर, हमने इसी चैप्टर में ऑपरेटर स्टडी करे हैं। कौन सा ऑपरेटर है ये, अरिथमेटिक ऑपरेटर। Multiplication is a arithmetic operator that is used to multiply 2 or more values. Clear? So it will multiply the values here. Value कौन सी ले रहा है, n और a की। So any doubt in the code? Anyone? So let's find the output. So enter the number whose table you want to print. For example, I have given a 7 here. So 7 1 is 7, 7 2 is 14, और कब तक चलते जाएगा, 7 10 is 70. Clear? How to display a number? So look at the code once again. Firstly, you are taking a number. That number is to be put inside some variable. So initialize, declare that variable using the integer data type. Then उसके बाद for loop लगाया, 10 तक चले, and simply you have to put a multiplication statement. अगर आप चाहते कि सीधा इतना ही आए, 7 14 21, आगे वाला नहीं आए, तो फिर क्या चीज रिड्यूस करेंगे हम, क्या कोड में चेंजेस करेंगे, सिंपली वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट n इंटू ए, आगे वाला हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो फिर सिंपली टेबल के आंसर्स आ जाएंगे 7 14 21 ऐसे। अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा प्रिंट हो, साथ में वो प्रॉपर सिंटेक्स आए, 7 multiply 1 equal to that, so you have to write like this way. Clear है? Any doubt? हो गया बच्चे आपका रिटर्न? Okay, now the next program using the do while. So for do while, the syntax do while condition, set of statements, and then loop. So let's start again. So I'm taking n as integer here. हम do while के साथ सेम प्रोग्राम अगर करें तो हम क्या करेंगे, हमने n से पहले वैल्यू एंटर कर ली, right? Now instead of for here we will be writing do while now condition. कंडीशन क्या, हम फॉर लूप में क्या कंडीशन बना रहे थे, जब तक a की वैल्यू लेस देन 20 है तब तक हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, यही हमने कंडीशन बनाई। नाउ वी हैव टू राइट दिस कंडीशन हियर। फॉर लूप में हम कंडीशन लिखते नहीं, हम समझाने के टाइम पे मैंने आपको बताया कि ऐसे चलेगा, उसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव टू स्पेसिफाई कंडीशन कब तक चले, जब तक a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। डू व्हाइल जब तक a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, so we have to initialize the value of a also. So it's giving an error because यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी डिफाइन नहीं की है। So firstly define the value a also here. So a की वैल्यू हमने स्टार्ट करी 1 से, a equal to 1, and also declare this as integer. ओके, a की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं,
a इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 है और कब तक चले, डू वाइल जब तक a की वैल्यू लेस देन 10। क्लियर हो गया। a की अब फॉर में कैसे देते थे, इक्वल टू 1 to 20 और 1 to 10। यहाँ पे कैसे दे रहे हैं, पहले a की वैल्यू डिफाइन करो, a की वैल्यू 1 है, उसके बाद डू वाइल कहाँ तक जाना है वो आप एंडिंग कंडीशन दे रहे हैं, a लेस देन इक्वल टू 10 है, जब तक उसकी वैल्यू 10 से छोटी या 10 से इक्वल है तब तक ये लूप चलता जाए। जब उसकी वैल्यू 10 से इंक्रीज हो जाए, when the value will get increased, it will stop, it will come out of a loop, rest of the things are same। क्लियर। अब उसमें नेक्स्ट का मतलब क्या होता था, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, इंक्रीमेंट, राइट। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा a इक्वल टू a प्लस 1, लाइक दिस। आप काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, so here we have to write a equal to a plus 1। the code is clear। now once again we are going to enter a number here, जिसका भी टेबल आपको प्रिंट करना है। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 और कब तक चलेगा, 3 10s are 30। जब उसकी वैल्यू 11 हो गई तो इट विल स्टॉप। अब दोनों प्रोग्राम्स की कोडिंग आपको मैंने दे दी है, लाइन लगा के दोनों तरफ लिख लो फॉर नेक्स्ट की कोडिंग और इस तरफ डू वाइल की, द डिफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर। yes, any doubt in the do while, the syntax of do while? yes बच्चे, any doubt? हरी आप एक और प्रोग्राम करते हैं इवन नंबर वाला यूजिंग द डू वाइल ओनली, कर दो इसको इरेज में। ओके हरियर, डन बच्चे। इफ आई वांट टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग डू वाइल, क्या कोड आएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और हमें ये वैल्यू चाहिए ही नहीं है, नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें तो सिंपल नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इसको इरेज कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू आपने एज इंटीजर तो डिफाइन किया ही हुआ है, ए की वैल्यू 1 और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो ए लेस देन और इक्वल टू 10 और इसमें क्या पास करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए, और ए को कितने से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 से। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। so print to see we will get first 10 natural numbers using do while loop now। coding is clear, the coding is clear। what if I want to display odd numbers, first 10 odd numbers, a की वैल्यू 1, कहां तक जाना है, लेस देन और इक्वल टू 20। ऑड नंबर्स में कितने का गैप होता है, 1 + 2 3 होगा ना, तो इट विल गेट इंक्रीज्ड बाय 2, a इक्वल टू a + 2। तो सी हियर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन अप टू 19, 19 + 2 21 हो जाएगा, तो वो फॉल्स हो गया, इट विल नॉट गोइंग टू डिस्प्ले, क्योंकि 20 तक हमने कंडीशन दिया ना, we have given condition till 20, so that's why it will stop। any doubt? now if I want to print even numbers, then a की वैल्यू 2 और कोई चेंज, एनी अदर चेंज, 20 तक जा रहे हैं, कंडीशन करेक्ट है, 2 + 2 4 होगा, तो 2 से इंक्रीज होगा, वो भी करेक्ट है। तो सिंपली इवन और ऑड में आपने ए की वैल्यू चेंज करनी है, स्टार्टिंग वैल्यू, बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज सेम। so when you will click here, so 2 4 6 8 है, okay, even and odd numbers। okay, one more question that I want to ask, if I want to print even numbers between 51 to 70,
a इक्वल टू 51, और हम इवन नंबर्स ले रहे हैं तो हम 52 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इवन नंबर्स ले रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। 50 से लेके मैंने कितना बोला 70, तो कहाँ तक जाना है 70, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन आपने चेंज कर दी, और इंक्रीमेंट 2 से ही होगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग द इवन नंबर्स, so rest of the program will set 52 से लेके 70. Okay, any doubt? So the concept of looping is clear. When we want to print a particular statement repeatedly number of times, so instead of writing the print statement again and again, we can use the concept of looping. The two looping statements are for next, do while, right? Any doubt? अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हो 10 से 1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, जाना कहां तक है मुझे, तो क्या कंडीशन आएगी, लेस देन और इक्वल टू, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट विल बी और इक्वल टू 1, और रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो a इक्वल टू a माइनस 1, क्लियर। पहले क्या है 10, हमने 10 प्रिंट कर दिया, फिर हमने बोला जब तक 10 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक चलता जाए। यस, 10 की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही है, कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा। 10 प्रिंट हुआ, 10 माइनस 1 9, अगेन 9 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू हो गया, फिर से प्रिंट हुआ 9 माइनस 1 8, ऐसे ही चलता गया। 2 पे आ गए आप, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस इट इज इक्विवेलेंट टू 1, तो 1 प्रिंट हुआ, 1 माइनस 1 इज 0, नाउ 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन बिकम फॉल्स, इट विल स्टॉप, क्लियर। सो 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर, the concept is clear.